میں آپ کو بتائیں صوبائی دارالحکومت میں سورج کے جلوے گرمی کی شدت بڑھنے لگی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 38% تک جا پہنچا ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 180 تک جا پہنچا۔ مزید جان لیتے ہیں زین علی سے۔ زین بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں جو ہے وہ درجہ حرارت میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ پچھلے کئی روز سے صبح سویرے جو ہے وہ ٹھنڈک جو ہے وہ محسوس کی جاتی تھی اور صبح سویرے جو ہے وہ ہوائیں چلتی تھی۔ اب آج جو ہے وہ صبح سویرے جو ٹھنڈک ہے اس میں بھی جو ہے واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور سورج جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ہوائیں بھی جو ہیں وہ چلنا بند ہو گئی ہیں۔ جبکہ آج جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ گرمی کی شدت محسوس کی جانے کی پیشن گوئی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ خصوصی طور پر اگر بات کر لی جائے لاہور میں آج دن بھر رہنے والے شہر لاہور کے درجہ حرارت کی، تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا کم از کم درجہ حرارت 25 ڈگری، جبکہ زیادہ سے زیادہ آج جو پارا ہے وہ 41 ڈگری کو جو ہے وہ چھونے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت بھی جو ہے وہ صبح سویرے ہی 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر موجود ہے اور امید ہے کہ دوپہر کے اوقات میں جو ہے وہ شہری کو جو ہے وہ گرمی کی تپش جو ہے وہ محسوس کروائے گا، جبکہ شہر میں جو ہے ہوائیں بھی چلنا مکمل طور پر اب جو ہے وہ بند ہو چکی ہیں۔ اس وقت شہر لاہور کا جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 38% تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے تاحال جو ہے وہ بارشوں کی کوئی پیشن گوئی جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اگر دوسری طرف بات کر لی جائے کچھ فضائی آلودگی کی، تو جیسے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا اسی کے ساتھ ایئر کوالٹی انڈیکس میں جو ہے اضافہ ہونے لگا ہے۔ آج شہر لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 180 تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین۔ شدید بڑھتی مہنگائی کے باعث شہری روزمرہ اشیاء مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مرغی کے گوشت کی قیمت کا تعین نہ کیا جا سکا۔ مارکیٹ میں برائلر گوشت 520 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ فارمی انڈے 1 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 229 روپے ہو گئی۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6750 روپے میں دستیاب ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نقل نامے جاری کیے گئے اس میں برائلر گوشت کی قیمتوں کا تعین آج بھی نہیں کیا جا سکا ہے، صرف زندہ برائلر کی قیمتوں کا تعین کیا گیا ہے۔ زندہ برائلر کی قیمتوں میں بھی 10 روپے فی کلو تک کمی کی گئی ہے۔ سرکاری ریلیز کے مطابق فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 310 روپے ہے، جبکہ ہول سیل زندہ برائلر 324 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ اسی طرح پرچون بازاروں کے لیے زندہ برائلر کی قیمت 338 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ برائلر گوشت کی قیمتوں کا تعین نہ ہونے کی وجہ سے شہر کی دکانوں اور مارکیٹوں میں جو برائلر گوشت فروخت کیا جا رہا ہے وہ 500 سے 520 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ساسی گوشت جو ہے 600 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر گوشت کی قیمتوں کا تعین نہ ہونے سے ہر دکان ہر علاقے کا ریٹ جو ہے وہ الگ ہے۔ حکومت جو ہے جو سرکاری ریلیز ہے اس میں برائلر گوشت کی قیمتوں کا بھی تعین کرے تاکہ شہریوں کو پتا ہو کہ کن نرخوں پر برائلر گوشت کی خریداری کرنی ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور آج چوتھے روز بھی انڈوں کی قیمت میں 1 روپے فی درجن تک کا اضافہ کیا گیا۔ سرکاری ریلیز میں جو فارمی انڈے ہیں وہ 229 روپے فی درجن مقرر کیے گئے اور ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6750 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا۔ گندم کے کاشتکاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ویٹ سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کی منظوری، فلور ملز کی 25% گندم خریداری یقینی بنانے کے لیے قانون میں ترمیم کا فیصلہ، 15 لاکھ کارکنوں مزدوروں کے لیے سب سے بڑا راشن کارڈ متعارف کروایا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن رضا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں پنجاب کابینہ کا 25واں اجلاس گندم کے کاشتکاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ویٹ سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کی منظوری، فلور ملز کی 25% گندم خریداری یقینی بنانے کے لیے فوڈ گرینز آرڈر میں ترمیم کا فیصلہ، 25% لازمی گندم خریداری نہ کرنے والے فلور ملز کے لائسنس منسوخ ہو سکتے ہیں، الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ سسٹم کے نفاذ کی تجویز کی منظوری، الیکٹرانک ویئر ہاؤسز میں کاشتکار کو گندم سٹور کرنے کی سہولت ملے گی، اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ پنجاب حکومت کا 15 لاکھ کارکنوں
मजदूरों के लिए सबसे बड़ा राशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। वर्कर्स को राशन कार्ड के जरिए 10,000 रुपए माहाना इमदाद की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरीम नवाज की काविशों से पंजाब में चावल के काश्तकारों के लिए अहम फैसले की मंजूरी। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनहोई अकेडमी चीन और अयूब इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के दरमियान MOU पर दस्तखत होंगे। चीन का इदारा पंजाब में चावल का हाइब्रिड सीड मुतारिफ कराने के लिए मुआवनत करेगा। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में पहला नवाज शरीफ अर्ली एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। लाहौर में येलो, ब्लू और पर्पल लाइन के मैस ट्रांजिट सिस्टम्स की फिजिबिलिटी स्टडीज की मंजूरी। पंजाब में चिंची रिक्शों को रेगुलेट करने के लिए मोटर व्हीकल रूल्स में तरामीम की जाएंगी। वजीर आला मरियम नवाज की हस्पतालों में फर्नीचर और तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए फंड्स फराहम करने का हुक्म। पंजाब काबीना ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी तरामीम की मंजूरी दी, जिनके तहत एडिशनल सेशन जजेस को सारिफ अदालत के इख्तियारात दिए जाएंगे। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। आवाम की ज़िंदगी में आसानी और बेहतरी लाना ख्वाब है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है पंजाब को तरक्की की राह पर गामज़न कर चुके हैं। अवामी खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का काम है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान सूबाई असम्बली आरिफ महमूद और आगा अली हैदर ने मुलाकात की। मुलाकात में सियासी उमूर और सूबे में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम शुरू कराने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज का कहना था कि अवाम की जिंदगी में आसानी और बेहतरी लाना ही मेरा ख्वाब है। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर चुके हैं। अवाम की खिदमत करना ही मुस्लिम लीग नून का काम है। अरकान असम्बली ने कहा कि मरियम नवाज हकीकी मायनों में अवाम की खिदमत का जज्बा रखती हैं। सरकारी अस्पतालों से अद्वियात का फ्री मिलना पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को 4 चांद लगा रहा है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से वज़ीर आला मरियम नवाज अवाम के दिलों में घर कर रही हैं। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सोशल सिक्योरिटी और वर्कर्स वेलफेयर फंड से रजिस्टर्ड 12 लाख वर्कर्स के लिए राशन स्कीम शुरू करने का फैसला। 40 अरब रुपए से वर्कर्स को राशन वाउचर्स दिए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए अच्छी खबर। 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए राशन स्कीम शुरू करने का फैसला। पैसी, WWF और पंजाब हुकूमत मंसूबे के लिए फंड्स फराहम करेगी। सोशल सिक्योरिटी और वर्कर्स वेलफेयर फंड से रजिस्टर्ड वर्कर्स को सहूलत दी जाएगी। मंसूबे के लिए पंजाब हुकूमत 20 अरब रुपए देगी, जबकि सोशल सिक्योरिटी और WWF 10-10 अरब रुपए फराहम करेगा। पैसी की जानिब से वर्कर्स को पंजाब बैंक के कार्ड दिए जाएंगे। बैंक कार्ड पर वर्कर्स को मखसूस आउटलेट से 3,000 रुपए तक का राशन मिलेगा। मंसूबे का नाम CM मजदूर कार्ड तजवीज़ किया गया है। 1 मई से वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मंसूबे का आगाज किए जाने का इम्कान है। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी है। मुलाजमीन मुतालिबात के हक में डट गए हैं। कहते हैं मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज तहरीक जारी रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के हस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने को 17 रोज गुजर गए। महकमा सेहत और धरना मुलाजमीन में मुज़ाकरात न हो सके। धरना मुलाजमीन कभी CM हाउस का रुख करते हैं तो कभी महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब। कहीं पर भी सुनवाई नहीं। मुजाहिरीन का कहना है पीर तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने मुज़ाकरात न किए तो शहर के दीगर मुकामात पर भी एहतजाज करेंगे। बाकी इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर देंगे। हुकूमत वक्त ने हमारे मुतालबात ना माने तो हम अगला ऑप्शन हमारे पास इंडोर है, हम लोग इंडोर बंद करेंगे। अगर फिर भी हुकूमत ना मानी तो फिर हम लोग इमरजेंसी सर्विस भी बंद करेंगे। अब तक वो हमारे किसी भी मुज़ाकरात के लिए एग्री नहीं हुए, क्योंकि वो कहते, उनका मानना ये है कि ये पाकिस्तान का हम भला कर रहे हैं, ये करें, एजुकेशन वो प्राइवेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स वो प्राइवेट कर रहे हैं, ये कौन सा भला है। हम बैठे हैं यहाँ पे स्टिल, हम अपना हक और अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, हमारे राइट्स को नहीं देखा जाएगा, तब तक हम बैठे हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने एहतजाजन पोलियो मुहिम का भी बाइकआउट कर रखा है। कैमरामैन शहबाज खान के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब के PHUs और अस्पतालों की रिजकारी का मामला 17 रोज़ से हुकूमती गैर संजीदगी बरकरार है। सूबा भर के सरकारी अस्पतालों के आउटडोर चौथे रोज़ भी बंद हैं। OPDs बंद होने से 4 रोज़ में 1.5 लाख से ज़ायद मरीज़ मुतासिर हुए हैं। लाहौर समेत पंजाब के BHUs और अस्पतालों की निजकारी का मामला 17 रोज से पंजाब असम्बली के सामने पुरअमन धरने में शामिल हेल्थ मुलाजमीन पर पुलिस तशद्दुद और हुकूमती मुज़ाकरात में गैर संजीदगी बरकरार है। सुबह भर के सरकारी अस्पतालों के आउटडोर चौथे रोज भी बंद हैं। रोजाना एक सरकारी तदरीसी अस्पताल की OPD में 4 से 5,000 मरीज रिपोर्ट होते हैं। दिल के मरीजों का इलाज मालजा बंद होने से दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना है। हम अपना इतना सफ़र करके किराया वगैरह खर्च करके आए हैं, तो ये तो परेशानी मरीज़ों के लिए है ना। तो जो दूर दराज से आते हैं उनके लिए परेशानी है। तो कम से कम ऐसा इनका सिस्टम कोई होना चाहिए
कि आर्जी तौर पर चले, मरीज को तो देखें ना। यहाँ का सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब डॉक्टर्स वगैरह अभी जैसे हड़ताल चल रही है तो डॉक्टर्स वहाँ पे निकले हुए हैं और लोग जो बेचारे हार्ट पेशेंट्स हैं तो वो आते हैं इस तरह से और जलीलो ख्वारों के जान से चले जाते हैं। लाहौर के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में हड़ताल जारी है। मियो, सर्विसेज, जिना, गंगाराम, जनरल अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल की ओपीडीज बंद पड़ी हैं। पीआईसी की ओपीडी भी बददस्तूर बंद है। रैंड हेल्थ अलायंस का कहना है कि पोलियो मुहिम का बाइकआउट भी जारी है। हुकूमत से मुज़ाकरात की कामयाबी तक शोबा बैरूनी मरीज़ा में हड़ताल जारी रहेगी। महकमा ज़राअत के बरतरफ मुलाजमीन का लाहौर में धरना जारी। मुलाजमीन का प्रेस क्लब के सामने शदीद एहतजाज और नारेबाजी। वो कहते हैं कि जब तक इन्हें नौकरियों पर बहाल नहीं किया जाता उनका धरना जारी रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। प्रेस क्लब के सामने महकमा ज़राअत के बरतरफ मुलाजमीन का धरना जारी। शोबा वाटर मैनेजमेंट से निकाले गए मुलाजमीन का अपने मुतालिबात के हक में शदीद एहतजाज और नारेबाजी। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि वो शोबा वाटर मैनेजमेंट में 20 साल से काम कर रहे हैं। हजारों मुलाजमीन को अचानक बगैर वजह बताए नौकरियों से निकाला गया है। तनख्वाहें कई माह से बंद, घरों में फाके पड़ने लगे। फौरी बहाल किया जाए। अगर हमें मुतालबात हमारे नहीं मानते, हमें बहाल नहीं करते तो इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही वज़ीर हाउस के सामने अपना एहतजाजी धरना भी देंगे। फाके काटे जा रहे हैं, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। 10 माह से हमें तनख्वाहें नहीं देगी। जिस वक्त तक हमें बहाल ना किया गया, हमारी तनख्वाहें ना दी गई, उस वक्त तक ये धरना हम जारी रखेंगे। मुजाहिरीन का मज़ीद कहना है कि अगर उनके मुतालिबात ना माने गए तो वो वज़ीर आला हाउस के सामने खुदकुशी पर मजबूर हो जाएंगे।